السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی اچھے ہوں گے۔ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جی این کوچنگ کلاسز میں آپ سبھی کا پھر سے خوش آمدید ہے۔ دوستو، آج ہم لوگ 12ویں جماعت کے اردو وشے پہ چرچا کرنے جا رہے ہیں، جو کہ بہت اہم ہونے جا رہا ہے۔ ایسے چھاتر ہیں جو 12ویں جماعت میں اردو رکھے ہیں، اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے، شروع سے انت تک بنے رہیے گا۔ آج موضوع بحث ہے معروضی سوالات۔ آپ کے ایگزام میں 100 مارکس کا آبجیکٹو پوچھے گا، صرف اس میں 50 کا جواب دینا ہے آپ کو۔ تو چلتے ہم لوگ بنا تاخیر کیے ہوئے معروضی سوالات پہ۔ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، شروع سے انت تک بنے رہیے گا۔ تو دوستو، پہلا سوال اس قدر ہوگا کہ مندرجہ ذیل میں مرزا فرت اللہ بیگ کے استاد کون تھے؟ نذیر احمد، پہلا سوال۔ اس طرح سے دوسرا سوال آئے گا، اردو کا پہلا خاکہ نگار کون تھا؟ فرت اللہ بیگ۔ مدرسہ میں فرت اللہ بیگ کے ساتھ کون پڑھتے تھے؟ میاں دانی۔ نذیر احمد کس مشہور شخصیت کے استاد تھے؟ فرت اللہ بیگ۔ فرت اللہ بیگ نذیر احمد کے گھر کیوں آتے تھے پڑھنے کے لیے؟ نذیر احمد کی کہانی کے مصنف کون ہے؟ فرت اللہ بیگ۔ نذیر احمد کی کہانی کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ خاکہ سے۔ مرزا فرت اللہ بیگ کی کون سی تصنیف شامل نصاب ہے؟ نذیر احمد کی کہانی۔ فرت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ اعراب کی۔ کس شخص کی تحریر و تصویر کشی کو کیا کہتے ہیں؟ کسی شخص کے تحریر و تصویر پر کو کیا کہتے ہیں؟ خاکہ نگاری۔ تو چلتے ہیں اسی کے ساتھ دوسرے سوال کی طرف۔ ولی کس مزاج کا انسان تھا؟ شاہ شنف تھا۔ انجم کے معنی کیا ہے؟ ستارے۔ درجہ ذیل اسم مشگر کون ہے؟ پہاڑی۔ اس طرح سے آپ کو 4 آپشن ملیں گے، اس میں آپ کو پہاڑی یا ادر دوسرا آپشن بھی آ سکتا ہے۔ درجہ ذیل میں اسم معرفہ کون ہے؟ ہمالیہ، ہے نا۔ 1 2 4 آپشن ہوں گے، اس میں آپ کو چوز کرنا ہے۔ درجہ ذیل مینس ہوتا ہے نمن لکھت، ہے نا۔ درجہ ذیل میں اسم معرفہ کی نشاندہی کیجیے۔ تاج محل۔ غریبہ قواعد کے اعتبار سے کیا ہے؟ غریہ قواعد کے اعتبار سے کیا؟ اسم حالیہ۔ توحید کا اسم فاعل کیا ہوگا؟ موحد۔ شاعر کی جمع کیا ہوگا؟ شعرا۔ درجہ ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ شعر۔ اس طرح سے آپ کو 2 4 5 آپشن ملیں گے، 4 آپشن ملیں گے، تو آپ کو چوز کرنا ہے کہ مذکر کیا، مؤنث کیا۔ مذکر سے مراد آپ کو ہوگی پلنگ، اور مؤنث سے مراد آپ کو استرلنگ ہو گیا، یعنی میل فیمیل ہو گیا، میسکولین اینڈ فیمولین ہو گیا۔ تو یہ اہم ہے، آپ کو ایگزام ہندی والے سبجیکٹ میں پوچھا جائے گا۔ لنگ نردھارن کے ریش میں استرلنگ کون سا ہے، پلنگ کون سا۔ اگر آپ اردو بڑھیا سے پڑھ لیتے ہیں تو آئی تھنک اس میں بھی ہندی بھی آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ درجہ ذیل میں مؤنث لفظ کون ہے، یعنی استرلنگ کون سا ہے؟ خوشبو۔ ان میں سے لفظ مذکر ہے کیا ہے؟ پہاڑ، پہاڑی۔ 4 5 آپشن رہے گا، اس میں آپ کو اس صحیح آنسر کو چوز کرنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ نہ خدا کے معنی ہوتے ہیں ملح، دائم کے معنی ہمیشہ، روح کی صفت کیا ہوگی؟ روحانیت۔ روشن کمرہ میں روشن کیا ہے؟ صفت، یعنی ایڈجیکٹو ہے، انگلش میں بات کرے تو، ہے نا، وشیشن ہے۔ سوغات کے معنی کیا ہے؟ تحفہ۔ خانشامہ کے کیا معنی ہے؟ سامان کا ذمہ دار۔ ان میں سے صفت کون ہے؟ جہالت۔ صفت بولے تو آپ ایڈجیکٹو ہو گیا، اس میں بہت 4 آپشن ہوں گے، اس میں ایک چوز کرنا ہے، جہالت۔ اس کی بڑائی جو بھی بیان کیا جائے نا، اس کی بڑائی جو بھی ہے وہ بیان کرنے کو ہی ہم کیا بولتے ہیں؟ صفت بولتے ہیں۔ زہرانہ کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ 2 پہر کا کھانا، یعنی ان میں سے اسم صفت تلاش کیجیے۔ بینائی۔ 3 4 آپشن ہوں گے نا، اس میں سے آپ کو چوز کرنا، جو کریکٹ ہوگا وہ دینا۔ اس طرح کا کوشچن آئے گا ایگزام میں آپ کو۔ ذہین طالب علم میں ذہین کیا ہے؟ صفت، اس کی خوبی ہے۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ تھوڑا ویڈیو بڑا ہوگا، گھبرائیں گے نہیں، بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، فائدہ مند۔ ایک ایک کوشچن آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ پانی پانی ہونا محاورے کا کیا مطلب ہے؟ شرمندہ ہونا، اپنا الو سیدھا
का मतलब क्या होता है, मतलब निकालना। अब इससे आप जुमला भी बना सकते हैं। आपसे सिर्फ मुहावरे का माना पूछा गया, अर्थ पूछा गया। जरूरत के लिहाज से बहुत कम मिलना किस कहावत का मतलब है? ऊंट के मुंह में जीरा। आस्तीन चढ़ाना का मतलब होता है लड़ने को तैयार होना। एक प्रकार का मुहावरा ये सब। ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब होगा जरूरत से बहुत कम मिलना। अब करना मुहावरे का माना क्या होता है? शर्मिंदा होना। कान में तेल डाल कर बैठने का मतलब होता है बेपरवाह होना। यगाना चंगेजी किसके शागिर्द थे? जिगर चंगेजी मुरादाबादी के। किस शायर को गालिब शिकन कहा जाता है? यगाना चंगेजी को। यगाना चंगेजी का असल नाम क्या है? मिर्जा वाजिद हुसैन। इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा और अब बस सुकून से आप देखेंगे, 4 ऑप्शन होगा, उसको सुकून से आराम से पढ़ना है, जो एग्जैक्ट आंसर होगा उसको देना है आपको। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सैयद सुलेमान नदवी की वफात कब हुई? 1953 ईस्वी में सैयद सुलेमान नदवी की वफात कब हुई, कहाँ हुई? कराची में। कराची पाकिस्तान में पहुंचे। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हो गया, कब हुई कहाँ हुई। कराची पाकिस्तान में। एक मुमताज नाकद की हैसियत से वजीर आगा की शनाख्त कब कायम होती है? हुई 1947 में। इंशाइया निगार का मकसद क्या होता है? जद तराजी। वजीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से है? पाकिस्तान से। वजीर आगा का ताल्लुक किस शन्फ से है? इंशाइया से। अहमद जमाल पासा की पैदाश कहाँ हुई? इलाहाबाद। इलाहाबाद यूपी में पड़ता है। दकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है? शिवान में। अहमद जमाल पासा किस यूनिवर्सिटी से एमए किया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। अहमद जमाल पासा किस साल एमए किया? 1958 में। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ, बने रहिएगा। मिर्जा गालिब का पहला तखल्लुस क्या था? अशद। पहाड़ काटने वाले से शायर की क्या मुराद है? फरियाद। गालिब की वालिदा का क्या नाम था? इज्जतुन्निसा बेगम। जी चाहता है तू बैठता या दूं के छाओं में, ये मिश्रा किस शायर का है? खलीलुर रहमान आजमी का। कौन सा जुर्म मर्शिया से ताल्लुक रखता है? बीम से। अता का कोई का असल नाम क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान। रजर का ताल्लुक किस सिनफ से है? मर्शिया से। जोश का पूरा नाम क्या है? बशीर हुसैन खां। जोश आजादी के बाद कहाँ चले गए? पाकिस्तान। मीर अनीश के वालिद का क्या नाम था? मीर मुस्तहसन खलीक। तो इस तरह से थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो रहा है, इम्पोर्टेंट और मारूजी सवाल है, इस पे बने रहिए। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट मारूजी सवाल पे। शहर लुधियानवी की पैदाश कहाँ हुई? लुधियाना। शहर लुधियाना की वफात कहाँ हुई? मुंबई में। दर्ज झेल शोरा कशीदा गो कौन है? मिर्जा मोहम्मद रफी शौदा। शायर के वालिद का क्या नाम था? चौधरी नजर मोहम्मद। मिजाज का इलाज किस पागल खाने में हुआ था? रांची में। मिजाज के वालिद का क्या नाम था? सिराजुल हक। दर्ज झेल में इश्म नकरा यानी इश्म आम कौन है? नदी। झेल मिर्खाबादी की वफात कब हुई? 1882 में। इनमें से कौन शायर तरक्की पसंद नहीं है? अली सरदार जाफरी। मिजाज की पैदाश कब हुई? 1911 ईस्वी में। जन्नत से हुक्म सफर किसे हुआ? हजरत आदम को। बंजारों को और किस नाम से पुकारा जाता है? खाना खराब। अहमद जमाल पासा के वालिद का क्या नाम था? सुजात हुसैन। बागो बहार के मुसन्निफ कौन है? मेरा बन। बागो बहार किस फारसी किताब का तर्जुमा है? किस्सा चार दरवेश। अम्मू से जनाजा में कांधा देने का वादा किसने किया था? बेटों ने। नावल बारिश संग के मुसन्निफ है जिलानी बानो। इनमें से जिलानी बानो की अफसानों का मजमुआ कौन है? रोशनी के मीनार। जिलानी बानो के वालिदा का क्या नाम है? अल्लामा हैरत बदायूं। अम्मू के खादमा का क्या नाम था? ख्वाजा बी। ख्वाजा बी। अम्मू के खादमा का क्या नाम था? ख्वाजा बी। निशाब में शामिल गुफ्तगू क्या है? नज्म है। नज्म मेरा सफर का शायर कौन है? अली सरदार जाफरी। जय प्रकाश नारायण की वफात कब हुई? 1979 में। आपको हिंदी में भी दिया हुआ है जयप्रकाश के बारे में। जयप्रकाश
के बारे में दिया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हिस्ट्री में भी पढ़ लेंगे जयप्रकाश के विषय में, और उर्दू में भी दिया हुआ, हिंदी में, इसलिए इस पे बढ़िया से प्रकाश डालना है। खेती कैसी नज्म में आजाद, अकबर आबादी को कौन खिदमत के शिले में खा बहादुर का खिताब दिया, अदालती खिदमत। बरक़ी कलीशा किस नज्म की कैसी नज्म में जरीफाना, अकबर आबादी की पैदाश कब हुई, 1845 में। जफर कमाली के जरीफाना शायर का मजमुआ का उन्वान क्या है, ज़राफ़तनामा। जलिया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है, शिवान में। मुतशायर किस तरह का नज्म है, शोफियाना। इस तरह से आपको सवाल आते रहेंगे, आप बारी बारी से इत्मीनान के साथ पढ़ना है, जो एग्जैक्ट आंसर देना है, घबराना नहीं है। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग आसानी से सॉल्व, जितना क्वेश्चन दिया गया पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ख्वाजा हुसैन नाज़ामी के वालिद का क्या नाम था, सैयद आशिक अली। ख्वाजा हुसैन नाज़ामी की पैदाश कब हुई, 1878 में। मजमून किस तरह के अदब में शामिल है, गैर अफसानवी अदब। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं, फतूर। सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम क्या था, सैयद अबुल हसन। सैयद सुलेमान नदवी किस कॉलेज में तदरीस के फराइज अंजाम दिए, पूना कॉलेज। बस्ती दशना किस जिला में वाक़ है, नालंदा। नालंदा एक बिहार में पड़ते एक जिला है। सैयद सुलेमान नदवी की पैदाश कब हुई, 1884 में। सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबा से था, बिहार से। कोड़मा किस जवान का लफ्ज है, तुर्की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बीच में स्किप नहीं करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो में ये किस तरह का जुमला है, सवालिया। तुम कहाँ जा रहे हो, है ना। गुलशन रोटी खाती है, रोटी क्या है, माफूल। हाकिम की जमा क्या होगी, यानी सिंगुलर प्लूरल, यानी प्लूरल क्या होगी, हुकाम। माजी बईद की एक मिसाल दीजिए, वह खाया था, पास्ट टेंस में बताया गया। दर्शगाह क्या है, इसमें ज़र्फ। तौहीद का इसमें फ़ाइल क्या होगा, मुअक्कद। रूह की सिफत क्या होगी, रूहानियत। अमानत के जिद क्या होगा, जिद मीन्स उल्टा, विपरीत, अपोजिट। दयानत। काश की वह आता किस फेल की मिसाल है, यानी फेल बोलते वर्ब, माजी ना तमाम। जमाना की कितनी किस्में, यानी टेंस की कितनी किस्में, 3। उसी तरह से जमाना की कितनी किस्में, 3 बताया गया। जाहिद क्रिकेट खेल रहा है, ये जुमला कौन सी किस्म है, खबरिया। कौन सी किस्म है, खबरिया, खबर देना, मैसेज देना। हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमला में हामिद क्या है, फाइल। एजाज की आगाज की जिद क्या होगी, यानी प्रारंभ, शुरुआत की जिद क्या होगी, अंजाम, अंत। जुल्मत की जिद क्या होगी, नूर। अख्तर की जिद क्या होगी, आखिर की जिद क्या होगी, अव्वल। इल्म की जिद क्या होगी, यानी उल्टा, जाहिल। 9-11 होना क्या है, मुहावरा है। मेरे वालिद बहुत खुश इखलाक हैं, इस जुमले में शब्द का क्या है, खुश। कान में तेल डालकर बैठने का मतलब होता है बेपरवाह होना, लापरवाह होना। नज्म की जिद क्या होगी, नश्र। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। शफी जावेद का असल नाम क्या है, मोहम्मद शफीउद्दीन। शफी जावेद ने किस मजमून में एमए किया, शमाजियात में। शफी जावेद की पैदाश कब हुई, 1935 में। शफी जावेद अहमद। सैयद अजीज अहमद किस अफसाने का किरदार है, भूले बिश्रे गीत। सलाम बिन रज़्ज़ाक का कौन सा अफसाना आपके नशाब में शामिल है, इब्राहिम शक्का। शफी जावेद ने किस यूनिवर्सिटी में से एमए किया, पटना यूनिवर्सिटी से। अब्दुल्ला भैशा कौन था, सरपंच का बेटा था। सलाम बिन रज़्ज़ाक की पैदाश कहाँ हुई, पनवेल में। भूले बिश्रे गीत किसका अफसाना है, शफी जावेद। शफी जावेद का आबाई वतन कहाँ है, गया बिहार में जिला पड़ता है। सलाम बिन रज़्ज़ाक का ताल्लुक किस शोबा से है, सूबे पंजाब से है, यानी राज्य से। तो मिर्जा फरतुल्ला बैग अहमद कौन थे, मिर्जा अफजल बैग। फरतुल्ला बैग के दादा कौन थे, मिर्जा अब्दुल्ला बैग। मिर्जा अब्दुल्ला बैग की पैदाश कब हुई, 1883 ईस्वी में। मिर्जा फरतुल्ला बैग के वालिद कौन थे, मिर्जा हशमत बैग। मिर्जा फरतुल्ला बैग की पैदाश कहाँ हुई, दिल्ली में। मिर्जा फरतुल्ला बैग की वफात कब हुई, 1947 ईस्वी में, यानी जब मेरा भारत आजाद हुआ तो उसी साल इनकी वफात भी हुई थी। शी पाड़ा दिल किस की तशनीफ है, ख्वाजा हुसैन नाज़ामी की।
ख्वाजा हुसैन नज़ामी के मुअर्रिश आला में एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम बताइए। सैयद बदरुद्दीन इशहाक। ख्वाजा हुसैन नज़ामी कहाँ दफन हुए, यानी उनको दफन किया गया? बस्ती हजरत निजामुद्दीन में। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने जा रहा है, बीच में स्किप नहीं करना है। आप चाह सकते हैं तो जहाँ की भी इसको वीडियो चालू करके आप सुन सकते चलते फिरते। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो तरफ। मौलाना आजाद की अहलिया का क्या नाम था? जुलेखा बेगम। मौलाना आजाद के वालिद का नाम क्या था? मौलाना खैरुद्दीन। मौलाना आजाद की पैदाश कहाँ हुई? पैदाश कब हुई? 1888 में। गबार खातिर के मुशन्निफ कौन है? मौलाना आजाद। मौलाना आजाद का असल नाम क्या था? मुहीउद्दीन। मौलाना आजाद ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इनकी पैदाश हुई थी अरब के सरजमीन पर। ये भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री है। गब्बार खातिर कितने खतूत हैं? 24। मौलाना आजाद किस मुल्क में पैदा हुए? सऊदी अरब में। मौलाना आजाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर बने? 35 साल की उम्र में मौलाना आजाद साहब जो है कांग्रेस के सदर बने थे। एहसान दानिश के वालिद का क्या नाम था? काजी अली दानिश। एहसान दानिश की वफात कब हुई? 1982 में। एहसान दानिश की पैदाश हुई कहाँ हुई? कौन सी जगह पे? कांधला में। एहसान दानिश का असल नाम क्या था? एहसानुल हक। तो बने रहिएगा, चलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह इम्तिहान में कामयाबी के लिए मेहनत कर रहा है, इसमें फेल क्या है? कर रहा है, क्या है? मेहनत कर रहा है, क्या उसमें? जमानी कितनी किस्में? 3। इससे लगता है आई थिंक ये 2 बार रिपीट हो गया, मैं पहले भी चर्चा कर चुका। माजी करीब की मिसाल दीजिए। वह खा चुका हूं, वह मुझसे मिलने आया था। ये जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है? तुम गए थे किस फेल की मिसाल है? माजी बईद की। फेल माजी मुतालिक की एक मिसाल दीजिए। वो आया। माजी शकिया की एक मिसाल दीजिए। वो आ गया होगा। शक है, ये आ गया होगा या नहीं भी है, इस पर डॉट है। वो पढ़ता था किस फेल की मिसाल है? माजी नातमाम की। माजी नातमाम की एक मिसाल दीजिए। वह जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं बहुत मेहनत से बनाया है, अगर थोड़ी भूल चूक हो गई तो इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। तो दोस्तों जाते जाते एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर किसी तरह का आपको सजेस्ट करना है कमेंट बॉक्स में आकर अपने जो है अपना राय का इजहार करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।